Good. Welcome to NDS North America Group. Our next semester will be on 25th September, which will be on a regular time. We will start at 2:30 p.m. California time. Today, you want to say something? Yeah, right. So, a disclaimer, we always have to, by American law, we have to explain the disclaimer. We are not doctors and we cannot be responsible for your health. So anything we would tell you is we're going to share our experience with you, and you have to, whatever care provider you have to stay with them, and we will guide you and we will share our experience with you. With that, Punita Ben, why don't you introduce our today's speaker? And today's program is going to be 1 hour from the speaker and a half an hour for the question and answer. Go ahead, Punita. I would like to say about the Kiran Watare. He is the great speaker. And welcome, Kiran Bhai, and say hi to Pallavi Ben. We are so lucky to have him today. The way he started NDS, because 12 years he had Sandiva, asthma, allergy, and his wife has some weight problem. Everything has been cured in the next 15 days. So he believed in NDS system. So he decided if this can help me, so he has decided to help all the human being and everyone he come across in front of him. So he's giving us so many speeches, big seminar, and we are so fortunate just to have him, because usually to take his appointment is a nightmare. So, and he just helping people in Maharashtra and in Gujarat and so many other places. Welcome to Kiran Watare. Okay, well, one more thing I would like to add. Kiran Bhai is a Dr. Watare. He has completed his medical naturopathy graduate. He's a graduate of naturopathy medicine, and he's been practicing for a long time. And he is a very decent human being. Besides doing the work for the people's health, he also is a very big speaker and pracharak for the Swadhyay. He goes Gujarat and Maharashtra. He's doing a tremendous work in a very lower level and a fishing area. I have to apologize. Usually our speeches are in English, but आज हम लोग हिंदी में बात करेंगे. और डॉक्टर वाटारे जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो इंग्लिश में भी बोलेंगे, लेकिन आज हम हिंदी में बात करेंगे. जिसको भी कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज चैट से मुझे सवाल करिए, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दूंगा. और जब भी टाइम होगा तो मैं कुछ ना कुछ इंग्लिश में आपके साथ करूंगा. तो पहले प्रोग्राम स्टार्ट करने के पहले मैं पुनीता बेन को एक गिफ्ट देने वाला हूँ. पुनीता बेन, आपके लिए डॉक्टर वाटारे का पहला बुक बाहर हुआ है. उसका नाम है रसाहार डाइट कैसे करें. उनकी पहली बुक है, बहुत ही फेमस हो गई, सारे इंडिया में सब लोग पढ़ते हैं. अभी तो हिंदी में आई है, अभी काफी डिमांड हो रही है कि उसकी हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती में ट्रांसलेट हो जाए. तो हम लोग उनके साथ वर्क करके वो भी करेंगे. हमने खाली हरेश भाई को थैंक यू बोलेंगे, टेम्पा NDS ग्रुप को. वो लोग ने मंगवाई, हमें 100 कोटा हमको भी दिया. तो हम लोग यहाँ आप अपने व्हाट्सएप में देखते रहेंगे, कैसे आपको मिलेगी वो आपको हम बताएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में. पूजा बहन, ये आपके लिए है, ये पहली बुक आपको हम दे रहे हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो अभी किरण भाई, अभी माइक्रोफोन इज योर्स. अभी आपको टाइम, आप जो भी टाइम लेना चाहिए वो लेना. लास्ट आधे घंटे हम सोच रहे हैं कि हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, और जिनको ज्यादा रहना है तो वो रह सकते हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम 1.5 आवर्स का होता है. तो उसके साथ किरण भाई, आप मेरे गुरु बंधु है, आप मेरे सीनियर बंधु है. हम जैसे NDS ऐसा यहाँ कर रहे हैं, आप वहाँ कर रहे हैं. आप तो बहुत बड़ी स्केल में कर रहे हैं, हम तो छोटे हैं यहाँ. तो आपका नॉलेज हमारे साथ बांटिए प्लीज. थैंक यू. सुबह उठने की बात की जो दिनचर्या है वो थोड़ी समझ लो.
सुबह उठने के बाद आज तक हम क्या करते आए, क्योंकि हमको बताया ही गया है ऐसा कि सुबह उठने के बाद पहला पानी पी लो, बहुत सारा पानी पी लो, पानी से पेट साफ हो जाता है। अरे पानी से पेट साफ होता तो सारे पशु पहले पानी पीने को दौड़ते। यह आपकी गलत फहमी है कि पानी से पेट साफ होता है। सबसे पहला करना क्या है, तो सुबह उठने के बाद होता है उतना उपवास करो। हम लोग जो कहते हैं कि 8 घंटा पचाना, 8 घंटा खाना, 8 घंटा डाइजेस्टिव, 8 घंटा उपवास, ये जो 3 हमने समझ दिए हैं, 8 घंटा पचाना, निकालना और खाना। तो आप 24 घंटे के 8-8 घंटे जो है अपने हिसाब से कीजिए। सुबह 4 से लेकर जो हमने 12 बजे तक का टाइमिंग दिया है, वो फास्टिंग का टाइमिंग है। तो सुबह जब आप उठते हो, आप कभी भी उठो, कोई परेशानी नहीं है, पर कम से कम होता है उतना उपवास तो करो। हर एक की शक्ति अलग अलग है। मैंने पहले कहा कि हर एक की वाइटल पावर अलग अलग है। जो पावर बच्चों में होती है, युवा में होती है, वो बूढ़ों में नहीं होती है। हर एक की पावर अलग अलग होती है। अपनी पावर को अनुभव करो कि मैं कितने बजे तक उपवास कर सकता हूँ। सुबह उठने के बाद मैं 2 घंटा कर सकता हूँ, 3 घंटा कर सकता हूँ, 6 घंटा कर सकता हूँ, क्योंकि ये साधना, ये कोई कोर्स नहीं है। इसको कोर्स मत समझो। फिर कहता हूं कि हम जो कहते हैं हजारों लोगों को सामने रखकर बात करते हैं, इसलिए कहा कि हर एक की प्रकृति अलग है, श्रद्धा अलग है, रोग अलग है। आप अपने हिसाब से उपवास कीजिए। मेरे भीतर स्टॉक कम है, मेरा वजन कम है, तो मुझे जितना सहन होगा उतना करूंगा। बाकी लोगों का वजन ज्यादा है तो उसका स्टॉक बहुत है, तो वो ज्यादा कर सकता है। जिसकी विल पावर ज्यादा है वो ज्यादा उपवास करता है। तो ज्यादा उपवास कीजिए या कम कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए, किसी से तुलना मत कीजिए। मैं बार बार कहता हूं। तो सवेरे उठने के बाद होता है उतना उपवास कीजिए। शास्त्र कहता है लंघनम परम औषधम। लंघन यानी उपवास सभी रोगों के ऊपर दवा है। बाहर का आदमी नोबेल पारितोषिक प्राप्त करता है उपवास पर लेख लिखकर, और हमारी संस्कृति ने हजारों साल पहले ही उपवास दिया है कि भाई उपवास कर। इस उपवास के दिन आपको एक ही करना है, फलाहार करना है, और हम उस दिन फरार करते हैं। यह अपभ्रंश है। बहुत सारा खाते हैं, एकादशी और दुप्पट खाशी। अरे उस दिन आपको आराम देना है आंखों में। उपवास में आंतों को आराम मिलता है। आहारम पचति शीकी दोषान आहार वर्जित। इसका मतलब ये है कि जब आप खाते हैं तो उसको भोजन को पचाने का काम हमारी वाइटल पावर करती है, पर जीवनी शक्ति करती है। पर उसको अगर आप खाने को नहीं दोगे तो आपके दोषों को वो खत्म करती है। तो आपके भीतर कोई भी दोष हो, सरदर्द से लेकर बदन दर्द से लेकर कोई भी बीमारी हो, तो सबसे पहले एक ही काम करना होता है, उतना उपवास करना। अब मैं फिर कहता हूं, जितना सहन होता है उतना करो। अब ये जो उपवास होता है ये केवल तन से नहीं चलेगा। समस्या कब आ रही है, क्यों आ रही है, उपवास क्यों नहीं कर पाते? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें उपवास करते हैं तो तकलीफ होती है, चक्कर आता है, थकान महसूस होती है, कमजोरी होती है। होगी भाई होगी, शुरुआत है आपकी। शुरुआती में थोड़ी सब कुछ होने वाला है। काजू बादाम खा गए और ताकत आ गई, ऐसा थोड़ी होता है। समझ दो सब बात को। इसलिए मैंने कहा संयम रखो। अगर आपको ऐसा होता है तो इससे डरना नहीं, क्योंकि उपवास में हमारी जीवनी शक्ति सफाई कर रही है। जब भी उपवास करते हो तब जीवनी शक्ति हमारे सफाई पर केंद्रित हो जाती है। इसलिए हमको उल्टी हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं, सरदर्द हो सकता है, चक्कर भी आ सकता है। शुरुआत में ऐसा होगा तो थोड़ा आराम करो, 2-4 दिन होगा, उसके बाद नहीं होगा। क्योंकि जब आपको लगता है कि सुबह खाएंगे नहीं तो हमें चक्कर आ जाएगा, और जब आप खा लेते हो तो आपका सरदर्द या जो भी कुछ है वो रुक जाता है। बहुत सारे लोगों का अनुभव है कि उपवास नहीं करते और कुछ खा लेते हैं सुबह सुबह तो हमें तकलीफ नहीं होती। इसका कारण यह है कि उपवास जब करते हो तो सफाई करती है जीवनी शक्ति, पर जब कुछ खा लेते हो तो हमारी जीवनी शक्ति सफाई छोड़ देती है। सफाई छोड़ देती है और वो खाने के बाद हमें लगता है कि हमें शक्ति मिल गई, क्योंकि वो शक्ति पचाने के पीछे पड़ती है। तो यह हमारा भ्रम है, इसको पहला दूर करो। सुबह उठते ही होगा उतना उपवास करो, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। और हम जी कर दिखा रहे हैं, 6 साल हो गए हम जी रहे हैं, कोई भी तकलीफ हमें नहीं है। जब भी हमारी बीमारी आ जाती है, कोई भी बीमारी, मुझे बुखार आया तो मैंने करके दिखाया था, 2 दिन तक मैंने पानी की बूंद भी नहीं ली। अरे हम यही तो अनुभव के साथ जी रहे हैं, केवल सलाह देने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। आज में कोरोना के काल में लोग घर में बैठे थे, पता नहीं मुझे कितने लोगों ने बाहर काम किया है। 115 गांव में गुजरात में मैं ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करके दिखा कर आया, ना मास्क लगाया ना सैनिटाइज। इसका कारण यह है कि हम अगर नेचर को फॉलो कर रहे हैं तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिद्धांत को समझो। उपवास आपके सफाई के लिए, आपके शक्ति को बढ़ाने के लिए, विल पावर को बढ़ाने के लिए है। इस उपवास में मन को भी आपको पावरफुल रखना है। आपके सामने भोजन पड़ा है पर खाना नहीं है,
इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप मंदिर में जाते हो तो बाहर कछुआ देखते हो। कछुआ जो है ना वो संयम का, इंद्रिय निग्रह का प्रतीक है। ये बात ध्यान में रखो। तो यही इंद्रिय निग्रह हमें करना है कि मेरे पास सामने पड़ा है पर मैं खाऊंगा नहीं, तो मन से भी नहीं खाऊंगा। अगर आपको सामने दिख रहा है, मुंह को पानी आ रहा है, तो इसका मतलब आपने मन से खा लिया, तो ये उपवास नहीं है। इसका शरीर पर असर होता है, क्योंकि आपके मन में अगर क्रोध आ गया तो बॉडी के ऊपर उसका असर होता है। आपके मन में अगर खुशी आ गई तो शरीर पर असर होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि फायदा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उपवास में आपका मन भोग रहा है, और जब मन भोगता है तो शरीर ने भी भोग ले लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि मन से भी आपको खाना नहीं है, ये उपवास है। क्योंकि हमारे शरीर में हजारों कोशिकाएं हैं, और ये हजारों कोशिकाएं आपके मन के ऊपर आधारित है। जैसा मन में आएगा वैसा ही वो कोशिकाएं बनेगी। इसलिए आपको अगर फायदा चाहिए तो पहले आपके मन को, विल पावर को पावरफुल बनाओ। यस, मैं करूंगा और मेरे लिए करूंगा, और मुझे स्वस्थ रहना है, भगवान के काम के लिए करना है। बॉडी इज अ टॉकिंग एंड वॉकिंग टेम्पल ऑफ गॉड। ये भगवान का चलता बोलता मंदिर है। मेरे घर की सफाई मैं करता हूँ, मेरे गाड़ी की सर्विसिंग मैं करता हूँ, मेरे बॉडी की सर्विसिंग क्यों नहीं करता हूँ, और फिर दूसरों को दोष देता हूँ कि मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मुझे बीमारी क्यों नहीं जा रही। इसका कारण यह है कि हम साधना को पूरी श्रद्धा से, प्योरिटी से समझ नहीं रहे हैं। हमको सेवा और सुमिरन के लिए ये शरीर को संभालना है। तो जब भी आप उपवास करते हो तो आपको तकलीफ होगी, तो इससे डरना नहीं है। समझ लेना कि आपको रिजल्ट मिलना चालू हो गया। जितनी ज्यादा तकलीफ होगी उतना समझना फायदा ज्यादा होने वाला है, तो इसमें डरो मत। तो कम से कम होता है उतना करो। अगर आपसे 10 घंटा होता है तो 10 करो, 2 घंटा होता है तो 2 करो, पर ध्यान में रखने का उसमें पानी की बूंद भी नहीं लेने का। सिद्धांत क्या है कि पानी की बूंद भी नहीं लेने का। बाकी आप कितना घंटे करते हो ये मायने नहीं रखता, आगे जाके आप आगे बढ़ोगे। तो उसके बाद एक ही काम करना है, जब भी आपको उपवास तोड़ना है तो उपवास तोड़ते वक्त हरी पत्तियों का जूस आपको लेना है। ये बहुत जबरदस्त एंटीवायरस है। जिस घर में ये एंटीवायरस होगा ना, उस घर में बीमारी अंदर एंट्री नहीं करेगी। तो हरी पत्तियों का जूस जो है, अब हरी पत्तियों में कौन सी बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ पालक ज्यादा मिलती है, 12 महीना मिलती है, पालक का जूस सबसे बेहतर है। पर जो आदमी जिस देश में रहता है उस मिट्टी में जो पत्तियां आती है वो पत्तियां उसके लिए औषधि है। ये बात ध्यान में रखो। जहां जहां जिस देश में जो भी फल है, जो भी वेजिटेबल्स है, वो अपने लिए औषधि है, उसको ज्यादा महत्व दो। ना कि तुलना करो मैं यह पालक ले रहा हूँ वहां क्या नहीं, जो मिलता है उसका जूस बनाओ। तो हरी पत्तियों में हरी पत्तियां ही मिक्स करो। हरी पत्तियों में जो पालक हम यहाँ बताते हैं उसमें सेंधा नमक इस्तेमाल करो। सेंधा नमक है, आयोडीन वाला नहीं इस्तेमाल करना। तो पालक की पत्तियां 250-300 ग्राम जितनी ज्यादा लेना है उतनी लो। आप कितने लोगे उस हिसाब से आप करो। रेसिपी क्या बताओ, रेसिपी अपने हिसाब से करो। जितनी पत्तियां लेना है 250-300 ग्राम पत्तियां लो, सेंधा नमक, हरा धनिया, पुदीना, अदरक, नींबू, और जो भी डालना है, आंवले वगैरह डालना है डाल सकते हो। पर आंवला नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करें, तो कोई बात नहीं, जो मिलता है वो डालो, पत्तियों के पीछे पड़ो। तो जितना हो सकते हैं नेचुरल लो। नेचुरल लेना है तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो हरी पत्तियों का जूस जो है इसमें वायु तत्व होता है। हमारे शरीर में प्राण, अपान, उदान, व्यान समान 5 प्रकार की वायु है। अगर ये कुपित होते हैं तो गोबर बनेगा, गैसेज बनेगी, गंदगी बनेगी, और ये पावरफुल बनते हैं तो रोग चले जाएंगे। आज 90% लोगों को कब्ज की बीमारी है, ये वायु के कारण है। और ये वायु पावरफुल करना है तो हरी पत्तियों का जूस ले लो। किसी भी जानवर को आप कब्ज की शिकायत नहीं देखोगे जो घर घर में यहाँ पर है। ये जो गोबर बढ़ेगा तो गैसेज बढ़ेगी, तो गोबर बढ़ेगा तो वात बढ़ेगा, वात बढ़ेगा तो शरीर में ज्वाइंट पेन बढ़ेंगे, कहीं भी दर्द हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि गैसेस को निकालो, गोबर को निकालो। तो गोबर बनता है पकाए भोजन से। एक थोड़े दिन पकाया भोजन बंद नहीं कर सकते आप? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूं एंजॉय करना है तो पहले गाड़ी सर्विसिंग तो करो। भगाने को किसने मना किया है, भगाओ बाद में, पर पहले खाली करो। बर्तन खाली करना है हमको, बर्तन खाली करना है। तो हरी पत्तियों का जूस है, उसमें क्लोरोफिल होता है जिससे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, डेंगू, वायरल इन्फेक्शन और कोई भी कोरोना जैसा वायरस से डरने की मुझे नहीं आवश्यकता लगती है। जिसकी श्रद्धा है उसको जरूर फायदा हो जाएगा। मैंने यही काम किया है, मेरे फैमिली में यही काम चल रहा है। हम लोग जूस पीते हरी पत्तियों का, हम किसी से नहीं डरते। अब लोग जो होते हैं वो अलग अलग प्रयोग करते हैं। मैं कहता हूँ अलग अलग प्रयोग अभी मत। आप शुरुआत कर रहे हो, प्रयोग बाद में करो। जब आप 6 महीना इस साधना में टिकोगे उसके बाद प्रयोग करो। जोश में आकर प्रयोग मत करो। अभी जो इजी मिलता है ना उसका जूस लो, फिर उसके बाद जो भी पत्तियां डालनी है वो कोई भी पत्तियां धीरे धीरे डालो। तो लोगों को तुरंत ही रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा। शुरू करो धीरे धीरे, 1%, 2% से लेके 100% तक जाओगे। तो हरी पत्तियों का जूस जो है बनाकर रख सकते हो, 3 घंटा टिकता है।
3 घंटे के बाद लेने की आवश्यकता नहीं। कहीं जॉब पर जाते हो तो बॉटल में लेकर जाओ। अब बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ड्यूटी पर जाते हैं तो पालक का जूस नहीं ले जा सकते, तो ऐसे समय क्या करें? तो भाई नींबू पानी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फल खा लो, क्या फर्क पड़ता है? मैं लोगों को समझाता हूँ, अरे आप जैसा करना है वैसा करो, पर शुरू तो करो, नेचर से जुड़ तो जाओ, धीरे धीरे आपको रास्ता मिल जाएगा। एक बात ध्यान में रखो, भगवान ने 2 शक्तियां इंसान के भीतर दी है। पहली है देवदत्त शक्ति। देवदत्त शक्ति का अर्थ यह होता है कि हर एक के पास ये शक्ति है, हर एक के पास शक्ति है, सिर्फ उसको प्रामाणिकता से फॉलो करो। आप कोई भी काम करते हो तो प्रामाणिकता से फॉलो करो। आपकी प्रामाणिकता देखकर भगवान उसकी शक्ति हमें देता है, उसे कहते हैं वासुदेव शक्ति। यह शक्ति कब मिलती है? जब आप ईमानदारी से साधना करते हो। इसलिए मैं कहता हूँ रिजल्ट कब मिलेगा? आप अपनी देवदत्त शक्ति का इस्तेमाल करो, ईमानदारी से साधना करते जाओ, भगवान उसकी शक्ति आपको दे देगा। चिंता मत करो, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, पर साधना छोड़ो मत। अब दिन भर क्या करो? हरी पत्तियों का जूस पीने के बाद अगर भूख लगती है तो कोई भी सीजनल फल खाओ। अब कौन सा फल खाओ? कोई भी खाओ जो सीजनल है, रीजनल है, सभी फल चलेंगे। और ये जो फल है जितना चाहे उतना खाओ। मैं लोगों को कहता हूँ आपका केवल चूल्हा बंद किया है, खाना बंद नहीं किया है। क्यों डरते हो? अरे घास खाकर बैल इतना काम करता है और आपको तो हमने केवल खाना ही बताया है। कौन सा हमने खाना बंद किया है? केवल चूल्हा बंद किया है। क्या थोड़े दिन चूल्हा बंद नहीं कर सकते आप? कर सकते हैं। गैस बंद करो, बाहर का अग्नि बंद करो, अंदर का अग्नि प्रज्वलित हो जाएगा। और अंदर का अग्नि अगर प्रज्वलित हो गया तो आपने 2 रोटी खाई कि 4 रोटी खाई, कोई मायने नहीं रखता। हम बार बार कहते हैं कि भट्टी तप गई तो लोहा पिघलता है, नहीं तो कागज भी धुआं निकलता है। हमारे भीतर की भट्टी को तपाना है तो इसकी सफाई पे समझ दो। क्या खाऊं, कौन सा खाना खाऊं, छोड़ दो। ये सारे यूट्यूब के जो लेक्चरर है, मुझे नहीं पता है इनको आपने के दुखों से कितना मतलब है। सारे भावनाओं से खेलते हैं। हम उनको सवाल करते हैं, जवाब आता है ये करो वो करो वो करो, किसी को कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शॉर्ट के पीछे मत पड़ो। ये जो साधना है, साधना करो, साधना से फायदा होगा। तो दिन में कौन सा फल खाना है? कोई भी फल खाओ। फलों में फल खाओ, पर एक साथ 10-12 फल मत खाओ। एक आध 2 फल खाओ तो ज्यादा फायदा होता है। पर रंगे बिरंगी डिश खाओगे तो पचन करने में थोड़ा तकलीफ अंदर की शक्ति को होता है। तो 1-2 फल ज्यादा खाओ। मतलब सफरचंद खाते हो, सेब, एप्पल, तो 4 खाओ, कौन मना करता है? पर 4 प्रकार के अलग अलग फल एक साथ थोड़ा सा अभी मत खाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो। और पत्तियों में फल इस्तेमाल मत करो, पत्तियों में वेजिटेबल इस्तेमाल मत करो, क्योंकि हर एक का तत्व अलग अलग है। अब शाम के वक्त 5 से 6 बजे तक आपको भूख लगेगी तो वेजिटेबल जूस ले लो। वेजिटेबल में आपके मार्केट में जो वेजिटेबल मिलता है वो ले लो। मैं फिर कहता हूँ, जिस देश में, जिस मिट्टी में जो वेजिटेबल सीजन में आ गए हैं वो ज्यादा ले लो, आपको जल्दी फायदा मिलेगा। वो क्लाइमेट के हिसाब से आते हैं। तो अभी अंगूर नहीं है तो अंगूर के पीछे मत पड़ो, जिसका सीजन है उसके पीछे पड़ो। तो वेजिटेबल में गाजर है, टमाटर है, लौकी है, कद्दू है, क्या क्या नहीं है। वो किसी का भी जूस पियो, होता है खाना तो खाओ, मना किसने किया है? तो शाम को वेजिटेबल जूस ले लो, शाम को वेजिटेबल खाओ, खाने को मना नहीं किया है। अब रसाहार में खाना है या पीना है? मैं कहता हूँ जो होता है वो करो। खाना होता है तो खाओ, पीना होता है तो पियो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि कच्चा भोजन पचाने में 2 घंटे लगते हैं और पकाया भोजन पचाने में 14 घंटे लगते हैं। आपने पकाया भोजन छोड़ा है तो 12 घंटे की ताकत बचती है, वो आपके रोगों को दूर करेगी। फायदा ये ना आपका। तो समय मिलता है तो कच्चा खाओ, समय मिलता है तो जूस पियो, पर पीने से ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि अंदर कचरा नहीं जाएगा तो फायदा ज्यादा है। पर दांत से चबाए बगैर हमको अंदर भीतर जो है ना वो अनुभूति नहीं मिलती पेट भरने की। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, खाओ। हमको पशु की तरह नहीं खाना है, अलग अलग अच्छी अच्छी रेसिपी बनाकर खाना है, तो खाओ। और शाम के बाद आपको जो है भूख लगेगी रात को, तो रात को आपको जो खाना है, एक तो आपको पैसेंजर ट्रेन में बैठना है तो पकाया भोजन खाओ, फिर क्या खाओ? तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मिलेट खाएंगे। मैंने कब कहा कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है? जो भी खाना है खाओ। मिलेट भगवान ने बनाए तो गेहूं चावल भी भगवान ने बनाए। मैंने पहले कहा कि क्या खाते हो इसके बारे में ज्यादा सोचो मत, निकालने में समझ दो। खाने के बारे में सोचना नहीं, निकालने के बारे में ज्यादा सोचना है। आप जो भी खाते हो रात को पकाया भोजन खाना है, तो कौन सा तेल, कौन सा भोजन, कौन सा क्या, छोड़ो। दिन में प्रकृति दे वैसा, रात में पत्नी दे वैसा, सिंपल है। अगर वाइटल पावर मजबूत है तो आप सब कुछ पचाओगे। तो रात को पकाया भोजन आप जो पसंदीदा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पशुजन्य आहार लेना है आपको, क्योंकि गाड़ी पेट्रोल से बनी है, डीजल मत डालो। हम नॉनवेज तो अलाउ नहीं करते हैं, पर दूध और दूध के बनाए पदार्थ जो है उसको भी आपको संभलना है, उसको भी आपको टालना है। तो वनस्पति आहार है वो ज्यादा से ज्यादा लेना है। वनस्पति आहार के लिए शरीर बना है, इसीलिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वनस्पति की तरफ ध्यान देना है।
तो रात में आपको जो है आपके हिसाब से खाओ, क्योंकि आपका मन तृप्त होगा तो रिजल्ट जल्दी मिलेगा, और मन अतृप्त होगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए भोग लो, क्योंकि भोगी भोगना है। पर रोगों को आना नहीं है तो सफाई के लिए दे, इसीलिए रात में पत्नी दे वैसा। पर आपको अगर जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वजन जल्दी उतारना है, तो हो सके उतना दिन। मैं 15 दिन की बात करता हूँ, इसका मतलब 15 दिन नहीं है, ये तो केवल शुरुआत है। आपको ज्यादा फायदा चाहिए तो 1 महीना करो, 1.5 महीना करो, 2 महीना करो, साल भर करो, मना किसने किया है? जितना सफाई करना है उतना करो, ये आपके विल पावर पर है, हमारी सलाह पर नहीं है। जितना ताकत है उतना टाइम आपको रसार करना है। तो रात को आपको पकाया भोजन बंद करना है, रात को भी जूस ही लेना है, या आपको पालक का जूस लेना है या वेजिटेबल का लेना है, ये आप तय करो। हम ज्यादातर पत्तियों का जूस बताते हैं, पत्तियों में ज्यादा फायदा होता है। आप अपने हिसाब से करो, या फिर आप फल खाओ, जो करना है नेचर से जुड़ जाओ। तो आप इसको हम एक्सप्रेस कहते हैं। कौन सी गाड़ी में बैठना है आप तय करो, या आपके विल पावर पर है, आपकी इच्छा पर है। आपको फायदा चाहिए तो रात में कच्चे पे आ जाओ। आपको लगता है नहीं मुझे भोजन करना है, पकाए भोजन पर वासना है, मैं कहता हूँ खा लो, डरो मत। डरते हैं इसलिए रोग बढ़ते हैं। अब ये हो गई भोजन पद्धति। अब ये भोजन पद्धति करते समय हमें एक काम करना है, उपवास से बॉडी के टॉक्सिन चले जाएंगे, रसाहार से नया कचरा आएगा नहीं, पर अभी पुराना निकालना है। तो पुराना निकालने के लिए हमको एनिमा करना है। ये जो एनिमा है, ये एनिमा आपको करना है। एनिमा कैसे करना है? एकदम सिंपल है। ये सुबह एक बार करो, और रात को भोजन ले रहे हो तो भोजन से आधा 1 घंटा पहले करो। और अगर आप हरी पत्तियों का या किसी भी फल का जूस ले रहे हो तो जूस लेने से आधा घंटा पहले करो। बाद में नहीं, बाद में करना है तो 4 घंटे के बाद। पर मैं कहता हूँ ज्यादा फायदा पहले होता है, तो रात के भोजन से या जूस से पहले करो। सुबह एक बार, रात को एक बार। मैं कहता हूँ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, ये कोई नेचुरल चीज नहीं, थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि हमने नेचुरल नहीं खाया है, उसको निकालने के लिए हमको ये करना है। हमारे बढ़िया हाथ में जो कचरा जमा हुआ है, इसको निकालने के लिए हमको एनिमा करना है। सुबह एक बार, शाम को एक बार। 1-1.5 लीटर का पॉट मिलता है कहीं भी मार्केट में, मेडिकल में भी मिलता है, सब जगह मिलता है। ये ले लेने का, ये पॉट और ये बड़ी नली सबको चलती है। और ये जो आगे की जो नली होती है, ऐसी नली मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये नली तकलीफ नहीं देती है। ये नली कॉक को लगाओ, और बस इसमें नल का सादा पानी। अब बहुत ठंड होगी तो थोड़ा गुनगुना करो। अगर बहुत बुखार आ गया होगा तो थोड़ा गुनगुना करो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और रोज गुनगुना करने की जरूरत नहीं। नॉर्मल पानी भरो, टॉयलेट में 3 से 4 फुट ऊपर अटका दो, टॉयलेट में बैठे वैसा बैठो। इसकी अलग अलग पद्धतियां है, पर मैं कहता हूँ कठिन में मत जाओ, इजी करो। जैसा टॉयलेट में बैठे जल्दबाजी मत करो। इतने साल लगे कूड़ा जमा करने में, तो निकालने में इतनी जल्दबाजी मत करो। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलते हो तो आखिर तक पहुंचोगे। किसी की बातों में आकर गलत रास्ते पे मत जाओ, धीरे धीरे करो। तो जैसा टॉयलेट में बैठे वैसा बैठो। अगर पेट नेचुरल साफ होता है तो साफ होने के बाद एनिमा तुरंत करो, और अगर साफ नहीं होता है तो भी तुरंत करो। हमारी गलत फहमी है कि पेट के कारण बीमारी आती है, पेट के कारण नहीं, मलाशय के कारण। बढ़िया हाथ में जो जमा वेस्टेज मटेरियल है, इसको निकालना है अभी। तो इसको निकालेंगे तभी बीमारी दूर भाग जाएगी। और दूसरा कूड़ा मन में पड़ा होता है, जो विचारों में होता है, उसको निकालो तभी बीमारी जाती है। केवल शरीर का मन निकालने से बीमारी नहीं जाएगी। अब जैसा टॉयलेट में वैसा बैठो, तो आप चालू करो। नली जो है एयर निकल गई, इतनी नली 2.5 से 3 इंच आगे से संडास की जगह गुदा एनस पॉइंट में इतनी नली डालो। जितना पानी भीतर जाता है, 250 ml, 300 ml, 500 ml, जो जाता है जाने दो। मैंने फिर कहा है कि जितनी कैपेसिटी उतना जाएगा, पर नॉर्मल जाना चाहिए, जबरदस्ती मत डालो। जितना पाणी जाता है उतना जाने दो, बंद करो। तो ये एनिमा जो है 1.5 लीटर का एनिमा 2 स्टेप या 3 स्टेप में करो, क्या फर्क पड़ता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप 10-10 बात करो, कोई जरूरत नहीं है। मैंने फिर कहा धीरे धीरे आगे बढ़ो, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। तो सुबह एक बार एनिमा डिब्बा खत्म होने तक करो, और रात में जो आप जूस लेने हो, जूस लेने से आधा 1 घंटा पहले करो। ऐसा अगर आप करते हो तो एनिमा से बढ़िया आपकी सफाई हो जाएगी। और केवल सफाई नहीं होगी तो फायदा क्या होता है एनिमा से, कि जैसा हम सवेरे उठने के बाद आंखों को ठंडा पानी मारते हो तो आंखों को एनर्जी निर्माण हो जाती है। उसी प्रकार जब हम बढ़िया हाथ को ये पानी के द्वारा पहुंचाते हैं अंदर, तो बढ़िया हाथ जो सिकुड़ी हुई है वो खुल जाती है, उसका फायदा जाता होता है। तो जो भी जहरीले तत्व बढ़िया हाथ में जमा हुए हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, और हमारे अंदर एनर्जी महसूस हो जाती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें चक्कर आ जाती है एनिमा के बाद,
होता है वो एनिमा के कारण नहीं होता है। जो हम टॉयलेट में बैठते हैं इंडियन टॉयलेट में, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक नहीं होता है, तो उसके कारण होता होगा, पर एनिमा का उससे कोई संबंध नहीं। एनिमा से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये बात पहले ध्यान में रखो। हमारे ऋषि मुनि बस्ती करते थे, ये बस्ती है सिर्फ सादे पानी का, उसमें कुछ ज्यादा मत डालो। बहुत सारे लोग कहते हैं हम ये डाले वो डाले, उसके पीछे मत पड़ो। ये सारी जो बातें हैं रसार की, मैंने मेरे रसार डाइट कैसे करें किताब में इजी बताई है। इसमें बहुत सारे अनुभव से लेकर सभी बातें मैंने बताई है। अनुभव करो, पढ़ो, आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। ये सिस्टम बहुत बड़ी है, 1 घंटे में हम समझा नहीं पाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, 1 घंटा होने को आया है। तो कहने का तात्पर्य है कि एनिमा करो, उपवास करो, रसाहार करो, पर ये करते समय श्रद्धा रखो। जितनी श्रद्धा ज्यादा उतना रिजल्ट ज्यादा। इसलिए मैं आज तक जो करते आया हूँ, मैंने श्रद्धा नहीं छोड़ी है। मैं शाम का भोजन पकाया मनपसंद खाता हूँ, जो पत्नी ने बनाया सब कुछ खाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। मना किसने कहा है? पर जब मुझे लगता है कि अभी भीतर में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं अपने आप को पहचानता हूँ, उस वक्त खाना बंद कर देता हूँ। दिन में कच्चा, रात में पकाया, पर जब मुझे बीमारी समझ में आती है, मैं पकाया भोजन छोड़ देता हूँ। इतना आसानी। इसलिए मैं कहता हूँ कि मन को तृप्त रखो, धन को बांटो, सेवा करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। अरे सेवा करेंगे तो मनुष्य जन्म का फायदा है, वरना एक पशु में और हमारे में क्या फर्क है? जितनी सेवा निस्वार्थ करते हो, हमारे कोशिकाओं की ताकत बढ़ती है, क्योंकि बांटने की खुशी बहुत जबरदस्त है। और इसका अनुभव मैं ले रहा हूँ। आज आपके सामने जो बैठा हूँ, ये ज्ञान के कारण नहीं बैठा हूँ। मुझे पता है कि मेरे सामने बैठे लोग मेरे से 10 गुना नहीं 1000 गुना ज्ञानी है। मेरे पास ज्ञान है, इस कारण मैं बैठा नहीं हूँ। मेरे सेवा और सुमिरन की ताकत और मेरे साधना के प्रति श्रद्धा, इसके कारण मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि साधना के सिद्धांत समझो, श्रद्धा रखो, सेवा करो और सुमिरन के लिए समय दो। जितना सुमिरन भगवान के साथ करोगे, उतना भगवान समय आपको देगा। भगवान ने गीता में कहा है, यथामाम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। जो आप मुझे दोगे उससे 1000 गुना आपको मिलेगा। तो मैं कहता हूँ थोड़ा समय भगवान को दो। उपवास का मतलब ही है, उप यानी निकट, समीप, और वास यानी रहना। सुबह थोड़ा समय, कम से कम 10-15 मिनट से लेकर थोड़ा समय जितना होता है उतना आप भगवान के समीप बैठो, तो देखो आपके कोशिकाओं की ताकत बढ़ जाएगी। अरे रोगों की हिम्मत क्या है हमारे भीतर आने की? इसलिए मैं कहता हूँ डरो मत, एंजॉय करो। बहुत सारा इजी है, इसको कठिन मत करो। बहुत सारे लोग आपको गलत दिशा में ले जाते हैं। अपनी सत्सत विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करो। मैं कहता हूँ बाहर का सुनना नहीं, बाहर का मार्गदर्शन लेकर अपने हिसाब से डाइट को करना है। तो अपनी सत्सत विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके नेचर से जुड़ जाओ। जो एंजॉय करना है शाम के वक्त आपको करना है, खाओ पियो, पर जब बीमारी आएगी तो छोड़ना सीखो। तो ये उपचार पद्धति नहीं है, ये शुद्धि का रास्ता है। शुद्धि का रास्ता समझ जाओ। तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, धन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, ये सारी शुद्धि समझ जाओ। ये सारा किताब में मैंने समझाया है। और अगर कुछ रहता है, क्योंकि अभी मेरे घड़ी में 8 बज गए हैं, 1 घंटा पूरा हो गया है, और 1 घंटे से ज्यादा समय लेना ये भी पाप है। करहि पाप पावै दुःख रुज भय शोक वियोग। इसीलिए मैं आपका समय नहीं लूंगा। आपको मुझे अगर कुछ पूछना है तो मेरे समझ के अनुसार मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मैं फिर से आप सभी साधक का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दीपक भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, हरीश भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, चौहान साहब जी को फिर से याद करता हूँ कि आपने भी मुझे इतना सारा सिखाया है। बहुत बहुत आभार है आपका। तो कुछ गलती हो गई है तो एक छोटा भाई समझकर मुझे माफ कर देना। अगर आप कुछ रहता है तो हम आगे बात करेंगे। तो सभी को फिर से एक बार दिल से जय तुलसी राम। अभी बहुत सारा विषय बाकी है, समय मिला तो फिर बात करेंगे। तो अभी कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछिए। Thank you आप हर so टाइम आते रहो, much. ऐसा समय की बात नहीं है। आप हर टाइम आते रहो, बस हो गए। Please mute everyone. Mute everyone. We are starting question which we have received in advance. So हम लोग पूछेंगे और बाद में हम चैट में जो क्वेश्चन है वो पूछेंगे। तो पहले तो मुनीश भाई आप पहले अनाउंस करो। हमारी जो लिंक है चैट में आपने लिंक लगा दी हुई है, उसमें लोग जाके उसमें मेंबर हो सकते हैं, अपनी व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर हो सकते हैं। आप थोड़ी उसमें थोड़ी एक्सप्लेन कर दीजिए मुनीश भाई। मुनीश भाई जी हाँ, तो आप ये मेंबर होना कैसे कर रहे हैं? हाँ जी बोलिए आप। हाँ, तो कैसे मेंबर होना है, किसको व्हाट्सएप ग्रुप में काफी लोग नए हुए हैं, उनको वो लोग को अपना व्हाट्सएप ग्रुप की पता नहीं है, कैसे वो मेंबर हो जाए? जी हम लिंक शेयर कर रहे हैं अभी चैट में। अच्छा, आप लिंक को क्लिक कीजिए, जो हमारा मेन व्हाट्सएप ग्रुप है
आप हाँ। उसमें ऐड कर सकते हैं अपना नंबर। अच्छा, और हम शेयर कर रहे हैं अपनी वेबसाइट, और आप वेबसाइट पे भी जो करंट इवेंट्स हैं या फिर कोई भी न्यूज़, रेसिपीज, कुछ भी हो, आप यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ये है ndsnorthamerica.org। और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यू डाइट सिस्टम नॉर्थ अमेरिका। इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे आज की जो मीटिंग सेशन है वो भी यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। तो मुनीश भाई, आप आज की जो हिंदी में जो लेक्चर हुआ है वो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। हाँ, तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमारी यूट्यूब पे लगा देंगे। जी, और सब हिंदी टाइटल्स में के भी साथ आ सकता है। हाँ हिंदी जी, में भी लगा देने का है। हाँ, हिंदी में तो होगा ही, लेकिन इंग्लिश में भी वो लगा देंगे। श्योर। ठीक है। अच्छा पूरिता बहन, अभी आपको जो भी क्वेश्चन आया है आप डॉक्टर साहब को पूछिए, तो वो बताएंगे जवाब, तो सब लोग को मिल जाएगा। वो है किरण जी, सौथी पहले आपने बहुत अच्छा हमको आज को सिखाया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, and I had a wonderful time in your home and having a really good lunch. I still remember. किरण भाई का नंबर चैट में लगाया हुआ है। चैट पे हाँ, लगाया तो हुआ है। किसको भी किरण भाई के साथ बात करनी हो, क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर के बजाय, तो आप उनको डायरेक्ट फोन कर सकते हो। वो नासिक में रहते हैं। वो हमारे एनआरआई की हमने शिविर की हुई थी नासिक में, तब आए थे। उसने काफी अच्छा लेक्चर वहां भी दिया था, तो उसका आज पुनरावर्तन हो गया। गो अहेड, आप सवाल पूछिए। अच्छा,